Hello, my dear students of class 7th. Great afternoon to all of you. I hope you all are fit and fine at your homes during this COVID period. In the last class, we have discussed about heat transfer, how we feel heat or cold of a body, hotness or coldness of a body. How can we feel it? That someone is hot and someone is cold, right? This is due to the flow of heat from high body temperature to a lower body temperature. Today we will study about the measurement of heat, which is done with the help of thermometer. Thermometer measure the temperature of a body, how cold or how hot a body is. And we will study on what principles thermometer is working and what are its features. कैसे ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. दिस विल हेल्प यू lot to understand the concept of thermometer. We will discuss clinical thermometer and laboratory thermometers. So let's start the video. Students, great afternoon to all of you. Welcome to our science class. So in the previous class or in our previous video, we have discussed about how heat flows, and due to the flow of heat from a hotter body to a colder body, we can feel how much hot or cold an object is with respect to our body. When we touch it something, we can sense it is hot or it is cold. This happens because of the flow of heat. So, and what are the direction of flow of heat? Heat always flows from higher body temperature or a hotter body to a colder body. हमेशा हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की साइड में हीट फ्लो करती है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरिंग ऑफ ए टेम्परेचर. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हाउ कैन वी मेजर इट, राइट? हाउ कोल्ड एंड हॉट एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर. तो वो एक्चुअल टेम्परेचर है कितना, वी विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस विच इज नोन एज आवर थर्मोमीटर, जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं. इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर which doctors use to measure the temperature. So what is the structure of this thermometer? This have a long narrow tube. This is the long narrow tube of glass which is of same thickness. Thickness is uniform. Throughout the tube, its thickness is uniform. And what are the other parts of thermometer? In the front, there is a bulb and a shiny substance, shiny liquid. एक shiny liquid होता है जिसको हम बोलते हैं mercury, and a bulb. This part is bulb. ये bulb होता है और liquid जो इस ट्यूब के अंदर होता है that is our mercury. Now what happens? How it works? ये वर्क कैसे करता है? जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री. अभी इसके ऊपर यू विल सी ए स्केल. नाउ इस ट्यूब के ऊपर आप एक स्केल देखते हो. दिस इज द स्केल जो कि स्टार्ट होता है 35 से और एंड होता है 32 पे. दिस इज द रेंज ऑफ स्केल. 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड 37 इज human body temperature which is normal temperature of a human body. And what is the word C signifies here? Celsius के पीछे जो C लिखा हुआ what does this signify? ये किस चीज़ को signify करता है? It is the degree of temperature which is Celsius. It will signify the term Celsius which is the unit of temperature. And what are the different units of temperature? We will study. There are some units also other than this. Now how it works? See, when we give heat to this bulb, इस bulb को जब हम heat देते हैं with the help of a candle or other source of heat, then in the capillary tube में जो mercury होती है हमारी, mercury जो होती है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है.
mercury will start expanding. See, this level is increasing here, this mercury level is increasing here. तो ये एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होके ये ऊपर जाती है. एंड व्हेन वी रिमूव द सोर्स, जब हम सोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये फिर से क्या होने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है. यानी कि इस लेवल से फिर से ये नीचे आने लग जाएगी इस साइड, राइट. एंड वी हैव ए सम बेंड पॉइंट हेयर विच इज नोन एज किंक. दिस बेंड पॉइंट इज नोन एज किंक which is just below our bulb. So what happens, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होके इससे नीचे आता है तो इस बेंड पॉइंट को क्रॉस करने में टाइम लेता है. इन दैट टाइम वी विल रीड आवर रीडिंग्स ऑन द स्केल. स्केल पे हम अपनी रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं उस टाइम के बीच में. सपोज नाउ इफ दिस डिवीजन बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं जो आपके, इनके बीच में मान लो आपके डिवीजन है 10. अगर ये 10 डिविजन्स हैं तो एक डिवीजन है जो वो कितना होगा, व्हाट विल बी द वन डिवीजन, इट इज 1/10 और 0.1 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड इफ दिस डिवीजन इज 5 डिविजन्स देन वन डिवीजन विल बी 0.2 डिग्री सेल्सियस, राइट. So on this basis we can calculate our readings on the scale and can find out how much temperature is there. So some precautions should be taken before we use our thermometers. So how can we use our thermometer? We should wash it with antiseptic solution. इसको हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, उसके बाद हमें इसको यूज़ करना चाहिए. और यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें इसको कुछ जर्क्स देने चाहिए ऐसे. इससे क्या होता है जर्क से, What happens due to these jerks, जो मरकरी का लेवल है कैपिलरी ट्यूब में वो बिलो 35 होना चाहिए, इस टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए. तो इससे नीचे लेके आने के लिए हम उसको ऐसे जर्क देते हैं. आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा जब वो इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद टेम्परेचर मेज़र करने के बाद वो इसको ऐसे करके रखते हैं. सो वो इसलिए होता है कि मरकरी का लेवल फिर से क्या हो, नीचे आ सके 35 से बिलो, तभी हमारी रीडिंग्स करेक्ट आती है इसमें, राइट. सो दीज आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक. देन वी कीप इट इन आवर माउथ एंड कीप इट फॉर अबाउट 1 मिनट. 1 मिनट तक माउथ में रखते हैं. देन इसको मेज़र करते हैं टेम्परेचर पे. जो टेम्परेचर का स्केल होता है इसमें, उस पर हम इसको मेज़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कम्स दिस, अगर ये हमारा इतना आ रहा है तो हम इसको मेज़र करके कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना है अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स. जितनी इस पे डिविजन्स हैं, जैसे 10 डिविजन्स हैं तो एक डिवीजन सिग्निफाई करती है कितना 0.1, और ये हमारी है कितनी 4 डिविजन्स. सो इट विल बी 37.4 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 37.4 डिग्री सेल्सियस, राइट. नाउ सेल्सियस इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर and there are some other units like Kelvin and Fahrenheit, right. Kelvin and Fahrenheit are the other units of temperature. Normally Fahrenheit में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 डिग्री Fahrenheit, right. We use these units for measuring temperature in different purposes. Normally we use Fahrenheit for measuring our body temperature, human body temperature, and we use Fahrenheit scale also and Celsius scale also. Now next is, हमें क्या है, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उस पे स्केल्स फिक्स होते हैं, तो उसको हमें दूसरी चीज़ों के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर हम दूसरी किसी भी चीज़ के यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं तो इट विल ब्रस्ट आउट, ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है जितनी इसमें रेंज है 35 से लेके 42 तक. इससे ऊपर अगर टेम्परेचर से अगर हम इसको मेज़र करते हैं किसी दूसरी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का जिसका टेम्परेचर इस रेंज से ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये ब्रेक हो जाएगा, इट कांट मेजर द टेम्परेचर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोमीटर, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस वी शुड टेक. हमें यूज़ करने से पहले उसकी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उसकी जो स्केल होती है
उस पर हमें उसको कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे हम रीड करें उसके स्केल को कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ये सब हमने थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया. दिस इज ऑल अबाउट अवर क्लिनिकल थर्मोमीटर, right? I hope this video will help you a lot to understand the concept of clinical thermometer and its working. Please watch this video. Thank you students, and have a nice day to all of you.